جی بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے کہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں کلام کی خدمت کروں. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی بھی کیا ہو. آپ سب خوش ہیں؟ آمین. ہم خوش ہیں. یس. آپ خوش ہیں؟ تو آپ کو ہنسنے رہی خوشی آپ سے خوشی ہے. خوشی ہوتی ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے. ہاں جی. کہ آپ خوش ہیں واقعی. تو آج میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ آج عزت مآب جناب بشپ سائمن سید صاحب نے مجھے دعوت دی اس گھر کے لیے کہ میں یہاں آ کر وہ کلام جو خدا نے مجھے دیا وہ خوشخبری میں آپ کے ساتھ بانٹ سکوں. آمین. آخلا میں لکھا ہے کہ کلام پر دھیان دے گا وہ بھلائی دیکھے گا. آمین. جو کلام پر دھیان دیتا ہے چاہے کلام سنانے والا ہو یا کلام سننے والا ہو. تو ایک بار پھر ونس اگین کہتا ہوں آپ سب خوش ہیں گے؟ یس. آپ وی آر ہیپی. خوش ہیں؟ یس. ایسا آپ خوش ہیں؟ ہاں جی خوش ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آلو سے شروع کہتا ہوں خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو. خداوند میں خوش رہو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوش رہنے والے لوگ جو خوش رہتے ہیں وہ دعا کو ہوتے ہیں. آمین. اور وہ دینے والے ہوتے ہیں. آمین. وہ جائز کرنے والے نہیں ہوتے. وہ پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور خدا نے یہ فضل دیا کہ آج بشپ سائمن سید صاحب نے اپنی محبت کا اظہار میرے ساتھ کیا اور میں اس محبت کو یاد رکھوں گا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا اس بات کو ضرور شیئر کروں گا ان کے لیے. تو خداوند آپ کو برکت دے اور آپ یہ روحانی جسمانی برکتیں خدا کرنا دے. آمین. ہاللویا. 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 زور سے بولیے گا. ہاللویا. آپ تو سید صاحب نہیں اب میں بول رہا ہوں آپ بھی بولیں گے آپ بھی سارے جتنے بھی جان گے. ہاللویا. 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 جب آپ ہاللویا بولتے ہیں تو خدا کی تعریف ہو رہی ہے. تو شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کی تعریف کی جائے. اس لیے میں یہ زیادہ زور ہاللویا پہ دیتا ہوں. آمین. آمین. اب ایک سوال ہے کیا خدا ہماری وکالت یہوہ خدا ہماری وکالت کرتا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جو بھی ہے اس کے بعد ہم آئیں گے. جی بتائیے تو کیا وہ ہماری وکالت کر سکتا ہے؟ ہاں جی. اوکے میرا بھی جواب ہے ہاں وہ کرتا ہے. وکالت دو معنوں میں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو بحث ہوتی ہے وکیل کیا کرتا ہے یا جس کی رسائی وکیل کا ہوتی ہے وکیل اس کے لیے جو ہے بحث کرتا ہے وکالت کرتا ہے اس کے لیے دفاع کرتا ہے اس کے لیے شفاعت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے حمایت کر رہا ہوتا ہے حامی بھر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو جتا دوں گا میں اس کو برکت دوں گا. ہاللویا. ہاللویا. تو آج دو معنی ہیں یاد رکھیں ایک وقت میں وہ وکیل بھی ہے اور ایک وقت میں وہ جج بھی ہے. ہاللویا. آمین. ہاللویا. سو آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 باب اور 22 آیت مقدسہ میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے 52 باب 22 ہے. 51 چیپٹر اور 22. یسعیاہ اوکے میرے ذرا تھوڑا نظر کا بھی ہے مسئلہ. اوکے اس میں یوں لکھا ہے جی تیرا خداوند یہوہ ہاں تیرا خداوند جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا اور تو اسے پھر کبھی نہ پیے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے اور عمل کیے جانے پر خدا کی برکت ہو. سب بولے آمین. پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. اسی یسوع میں میرے عزیزو آج آپ اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں. خدا ان کی وکالت کرتا ہے ان کی حمایت کرتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے جو اس کے چرنوں میں اپنا وقت بتاتے ہیں. ہاللویا.
सो आज देखें, खुदा आपको मैं चंद बातें इस हवाले से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। खुदा किनकी वकालत करता है? सुनिएगा, खुदा उनकी वकालत करता है जिनकी रसाई, जिनकी पहुंच खुदावंद तक होती है, क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त उसके चरणों में बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी वकालत करता है जिसे वो चुन देता है। खुदा उनकी वकालत करता है जो झूठ नहीं बोलते। खुदा उनकी वकालत करता है जो लालची नहीं होते। खुदा उनकी वकालत करता है जो उससे डरते हैं। खुदा उनकी वकालत करता है जो उसके करीब रहते हैं। खुदा उनकी वकालत करता है जो रास्तबाज होते हैं। खुदा उनकी वकालत करता है जो नेक दिल होते हैं। खुदा उनकी वकालत करता है जो रोए जमीन रूह और सच्चाई से उसके कलाम को पढ़ते और उसकी इबादत करते हैं। जैसे कि अय्यूब साबर था, अय्यूब साबर था। आज मैं उसके हवाले से आपको बहुत जरूरी चंद बातें बताना चाहता हूँ। अक्सर हमने अय्यूब साबर का जिक्र जो है फ्यूनल में सुना है, जहाँ तो फौत भी हो जाती है, मगर आज है तो कलाम वही, मगर जरा हट कर है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनिए। आइए मेरे साथ निकालेंगे। मैं भाई सबसे कहूंगा अय्यूब उसका पहला बाब और पहली 3 आयत, या आप जो भी आप निकाल सकती हो बेटा। अय्यूब पहली 3 आयत। कलाम मुकद्दस में अय्यूब की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। आमीन। पाकलाम के बड़े सुने जाने पाकलाम की बरकत। इसी यीशु में मेरे अजीजों, ये शख्स कामल रास्तबाज, खुदा गवाही दे रहा है। अक्सर हम सुनते हैं खुदा ने हमें रास्तबाज कर दिया, हम खुद अपनी दुनिया में जो बनते हैं। गवाही वो होती है जो दूसरा दे, और अय्यूब साबर की गवाही भी हवा खुदा दे रहा है कि वो कामल रास्तबाज और बदी से दूर और खुदा से डरने वाला ये शख्स है, और वो जो है इसलिए मैं उसकी वकालत करूंगा, मैं उसकी फेवर करूंगा, मैं उसकी हमायत करूंगा। और ये सारी बातें अबलीस के कान में जा रही हैं, अबलीस के कान में जा रही हैं, और वो सोच रहे हैं कि किस तरह मैं को। एक दिन क्या होता है कि अय्यूब के बेटियां बेटे जो अपने वक्त के मुताबिक ज़ियाफत करते थे, भाइयों को बुलाते थे और खाते पीते, और अपनी तीनों बहनों को भी बुला लेते थे, वो शामिल करते थे। ये है रफाकत, ये है निगानगत। आज 2 भाई एक खानदान में होते हैं अलग अलग। ये रफाकत थी, शराकत थी, आपस में मेल मिलाप था, और ये शख्स उनको तालीम देता था कि आप आपस में मिलकर रहो। और रफाकत जो है ये सबसे बड़ी ताकत है, और जब आप रफाकत में आ जाते हैं तो यकीनन खुदा की हजूरी होती है, क्योंकि जब रफाकत होती है तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो मोहब्बत होती है। हालेलुया। खुदा मोहब्बत है, और ये शख्स जो कामिल रास्तबाज बदी से दूर रहता था। एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने जो अपने हजूरी में थे, खुदा के बेटियां बेटे उसके हजूर में आए, उनके बीच में क्या हुआ? शैतान भी आ गया। उनके बीच में कौन आ गया जी? शैतान भी आ गया। और वो जो आया तो मैंने और आपके गुलाम ने कहा हम यहाँ क्यों फिरता फिरता है? उसने कहा कि मैं जमीन पे घूमता फिरता आया हूँ। तो मेरे गुलाम ने कहा मेरे बंदे का भी गौर किया है, कोई गौर किया उसके हाल पर? तो उसने कहा उसका क्या गौर करूं मैं उसपे?
आपने उसके चौगिर्द जो है बाड़ लगा रखी है, उसके हाथ को बरकत दी है, जो वो काम करता है तू उसको बरकत कर देता है। हालेलुया। तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ? तो कहता लगा उसको छू दे, हटा अपना हाथ, फिर मैं देखता हूँ तेरे मुंह पे वो तकबीर करता है या नहीं करता। इसी यीशु में मेरे अजीजों, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है कि जो मैंने पहले बात की, अय्यूब के बेटियां बेटे जो थे वो अपने अपने वक्त पे खुशी करते, ज़ियाफत करते, बहन भाइयों को बुलाते, इकट्ठा करते और फिर वो सारे खाते। और ये जो अय्यूब था, जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, ज़ियाफत के भाई साहब, हाँ जी ज़ियाफत पूरे हो जाते, खुशी पूरी हो जाती, खा पी चुकते, तो उनको बुलाते आओ और उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाता और ये सोचता कि शायद मेरी किसी बेटी ने या बेटे ने कोई खता ना कर दी हो, कोई गलती ना कर दी हो, कोई गुनाह ना कर दी, उनकी बारी बारी कुर्बानियां चढ़ाता। क्योंकि वो कामल राष्ट्रवाद इंसान था और बड़ा अमीर था। हाँ जी, 10 बच्चे और 1.5 बकरियां, जो अभी आपने ये देखा, 7 उसके 7 बेटे और 3 बेटियां, 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां। मेरे लिए बहुत अमीर है। आज अगर मेरी जेब से कोई 10 लाख खा देना तो मेरी आंखें क्या आ जाएंगी। आप देखें, जाने हम लोग तरसते रहते हैं कि हम मालदार बन जाएं, और जब बन जाते हैं हमारी फितरत भी बदल जाती है। मगर ये शख्स अमीर तरीन है और इसके अंदर हकीमी है, खुदा का खौफ है, डर है, प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर खुदा वकालत क्यों ना करेगा। हालेलुया। हमें सीखना है इस बात को। हमारे पास जो कुछ मर्जी हो, मगर हमें खुदा से डरना है। जो पहले मैंने कहा, हमें जेलस नहीं करना। अब यहाँ बिशप साहब बैठे हैं, मैं इनसे ऐसे जेलस करता हूँ, वो यार ये कैसे बिशप बन गया, पादरी कैसे बन गए। अरे भाई शुक्र करो, खुदा ने तो इज्जत दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे खुदा इज्जत देता है आप उसे आमीन आमीन। सॉरी, मेरा मुंह खुश जिसे खुदा इज्जत देता है उसे इज्जत देनी चाहिए। और ये बात जो है खुदा को पसंद है, क्यों खुदा को इज्जत दे रहा था। खुदा ने इसको कहा, शैतान को जो कुछ तेरे को उम्दा है कर ले। हालेलुया। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे खुदा की दूरी में। अभी ओके, ऐसा 6 पढ़ दीजिएगा पहले बाप की। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा, कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि मैं जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है। क्या तूने उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गई। फिर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकबीर ना करेगा? आमीन आमीन। थैंक यू। इसी यीशु में मेरे अजीजों, देखें कि वो कह रहे हैं जो तूने बाढ़ लगाई है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जिस फैमिली के चौगिर्द, जिस खादम के चौगिर्द, जिस कलीसिया के चौगिर्द बाढ़ लगी होती है, वो कलीसिया तरक्की करती है। हालेलुया।
और जब हम खुदा के पसंदीदा बन जाते हैं, खुदा के प्यार करने वाले बन जाते हैं, खुदा हमें प्यार करता है, तो खुदा अपनी बाढ़ हमारे गिर लगा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे आमीन को बात की बात है, पहले हालेलुया तो बोलो, बाद में आमीन करना। क्योंकि मैंने आमीन नहीं कहा, मैंने वो कलाम को दिया हालेलुया बोला। हाँ जी, तो आपने आमीन इसका मतलब शामिल है, मगर आप हालेलुया बोले, ये जगह हालेलुया की जरूरत है। ओके, तो खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। शैतान को जब ये पता हुआ तो उसने कहा तेरी बाढ़ लगी है, उसने चल और ना सारा तुझे तेरी क्या किया, खुदा ने अपनी बाढ़ हटा दी और उसे कहा चल और तेरे इख्तियार में है। तो की होया, शैतान की मौज लग गई, शैतान हौसला मिल गया, ਉਹਨੂੰ तसल्ली मिल गई कि हुण मैं जो चाहा मैं कर सकना। उसने कलाम मचा दिया, उसने ऐसा जबरदस्त जुल्म धरना किया कि जो उसका था वो क्या हुआ। 13 में लिखा हुआ है, सब इकट्ठे जमा थे, खा पी रहे थे कि एक नौकर भागता हुआ जिसके पास आया, अय्यूब के पास आया और कहा कि सभा के लोग टूट पड़े और नौकरों को हलाक कर दिया और मैं ही बचा हूँ, वो बैल और सारा कुछ ले गए और मैं तुझे इत्तला देने के लिए आया। अभी वो ये बात कह ही रहा था तो क्या हुआ, देख दूसरा आ गया कि बड़ी आंधी चली और घर के चारों कोनों पर अपने जोरों से टकराई कि सब बेटे बेटियां हलाक हो गए। कितने बेटियां बेटे थे जी? 10। ये याद रखें, 10 थे। बेटियां बेटे मर गई, अकेला मैं बचा हूं कि तुझे इत्तला दूं। अब अय्यूब ने क्या किया, ये जरा सोचने की बात है। अय्यूब ने क्या किया, इस अजियत में मुब्तला हुआ, इस दुख में, इस कर्म में उसने सर गिरवा दिया, अपना पहन चाक कर दिया। ये इंतहा थी उसके दुख की। 10 जनाजे पड़े हुए हैं। कितने जनाजे हैं? 10। मगर क्या है, रिवाइवल हुआ, मसा आया, हजूरी आई और वो झुका, शुक्रगुजारी का सजदा कर दिया और बोला खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार भी उसने खता नहीं की, एक बार भी गुनाह नहीं किया और खुदावंद यहोवा खुदा ने शैतान से कहा बस भाई तेरा काम हो गया, ठीक है, ताकि जोर ला ले, वो मेरा बंदा है, वो रास्तबाज है, वो डरता है बदी से दूर, क्योंकि जो मैंने उसको दिया उसने कहा उसी ने दिया, उसने दिया, उसी का नाम मुबारक। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, खुदावंद आपको बरकत दे कि ये है दूसरा अटैक, ये एक अटैक हुआ। दूसरा क्या हुआ, खुदावंद यहोवा खुदा ने जब ये बातें कर ली तो उसने कहा खाल के बदले खा, उसको छूते रहा, उसको खाल के बदले खा। तो खुदावंद ने एक बड़ी खास बात की थी, दूसरी क्या की बड़ा भक्त से, उसकी जुबान को नहीं, जुबान को नहीं, उसके मैं बताना चाहता हूँ। उसने कहा चलो भी तेरे प्यार, जानना उसकी लेना, जानना उसकी जान को मत टच करना, क्योंकि शैतान जान ले सकता है। और कई लोग कहते हैं नहीं लेता, ले सकता है, इसलिए खुदा ने कहा जान ना टच करना। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस बात को डिक्लेयर करता हूँ और वाज़ेह करता हूँ कि खुदावंद ने उसको मना किया कि उसकी जान। अब क्या हुआ, तलवे से जान तक, सर तक थोड़े नसूल पैदा कर दिए और सारा कुछ उसको करता देखते हुए उसके रिश्तेदार और बीवी सारे पर। अब उसने क्या ठीकरा लिया और खाक पर बैठ गया खुजाने के लिए। वो खुजान है, आपको देखा खारिज जब होती है, जब तक उसको खुजाना नहीं आपको चैन नहीं आएगा। तो वो नसूर जो थे, वो घोड़े थे, वो ठीकरे से रगड़ता था, खाक में बैठ गया। बीवी आई, अबलीस का काम उसने किया, अबलीस ने काम किया भाई उसने। तो उसने आके क्या कहा, कितनी देर तक रास्तबाजी ते रहना ही, सीधी राह ते चलना ही, कितनी देर तक क्या काम करते रहना है जी। खुदा दे खिलाफ कुफर बात
और मशवरा। अच्छा मशवरा दिया, अच्छा जी ऐसे में दसना है कईयां नूं ना मशवरा देने की बड़ी आदत होती है, तो कईयां नूं मशवरे लैण की आदत होती है, ना कईयां नूं देण दी ना लैण दी होती है। ते कई लोग ने वो मर्जियां अपनियां करते हैं, 100 बारी उन्हां नाल गल करो चंगी भी करो, वो मर्जियां अपनी करते हैं। अपने एक मशवरा देना ही भी तो खुदा के खिलाफ बोल, खुदा के खिलाफ बोल तो मर जा। अच्छा मशवरा नहीं, मगर उसने अपनी मर्जी, उसने अपनी, और जब उसने मर्जी थी तो उसने कहा तू नदान औरतों वाली बात कर रही है, क्या हम खुदा से सुख पाए तो क्या दुख ना पाए। हालेलुया हालेलुया। साबित कदम का कोई खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, और ये सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा को देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। उसी यीशु में मेरे अजीजों, ये उसके और भी दोस्त, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त है। ये कहानी ऐसी है कि इसको अगर आप 42 आयत तक पढ़े तो चैप्टर तक भी बहुत लंबा है, इसको मैं शॉर्ट करते हुए कि उसके तीनों दोस्त आए, आप भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, और अपनी अपनी तकरीरें खरीदी, सारा कुछ किया। अब खुदावन को जो वकालत कर रहा था उसको बिछा आ गया, तीनों पे बिछा आ गया, क्योंकि वो भी ठीक नहीं बोलते। तो खुदा ने कहा मेरा गजब तुम पे भड़का है, मेरा गजब तुम पे भड़का है, मेरे बंदा के पास जाओ, कुर्बानी लेकर जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऑर्डर दिया है, जज बन गया, जज बना है, और कहा जाओ उसके पास और वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकर उसके पास चले गए और कहा भाई ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ दुआ कर ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ खुदा माफ कर दे, तो खुदा ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया हालेलुया। तो जेड़ा सादक बंदा दुआ करे तो दुआ कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसलिए हमें सच्चाई से चलना है, ईमानदारी से चलना है, पाकीज़गी से चलना है। शक नहीं करने वाला वही है, शाफी खुदा वो है। हालेलुया। तो जब इन तीनों को उसने माफ कर दिया तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी असीमी को कर दी। हालेलुया। जो उसके पास था, जो चला गया, उसको उससे दुगना मिल गया। हालेलुया। और अय्यूब के लिए ताली तो बजा दो भाई। इसी यीशु में मेरे अजीजों, आज इस बात को अपने ध्यान में रखें। खुदा अपने लोगों की वकालत करता है और वो उनको सरफराजी देता है, वो उनको इज्जत बख्शता है। हालेलुया। खुदा ने इसको इज्जत बख्शी, शैतान को शर्मिंदा कर दिया और वो भाग गया। लिखा है बस तुम इसका मुकाबला करो, तो वो तुमसे तो मुकाबला करना किस तरह भाई? कैसे करना है? और दुआ रोजों में ठहरना है, वक्त गुजारना है छतों में, जैसा आप कह रहे थे कि 3-4 घंटे हम अभी वो जो पास्टर अलायंस के हैं अभी ठहरते हैं, तो ये है वो चीज कि आप खुदा को अपना वक्त दें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा अपने लोगों की वकालत करता है। आपको पता है जी, बुजुर्ग मूसा खान, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा थे, 5 मिनट, ओके मैं शॉर्ट करता हूँ, कहते 5 मिनट दुआ के टाइम से साड़ी वैसे की टाइम नहीं होता, बहुत कम हज लगे रहते हैं, फालतू गला करते रहते हैं। जब कलाम का टाइम होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुजुर्ग मूसा की 80 साल में वो चुना गया। खुदा जिनको चुनता है उनकी जो है वकालत करता है। हालेलुया हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, जो ये बुजुर्ग मूसा था, जिनकी किताब है उसका 12 बाब और 3 है, अच्छा ये लिख रहे हैं। ओके, आप
बिशप साहब आप भी पढ़ लें। गिनती 12 पहली 3 आयत। 12 की पहली। हाँ जी। और मूसा ने एक कूशी, हाँ जी वही, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? आमीन आमीन। क्या उसने हमसे भी बात? एक खानदान के 3 फर्द हैं, इसलिए सुने मेरे अजीजों, याद रखें जो चुनाव होता है इस वक्त हम खानदान की सूरत में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ खुदा ने इनको इज्जत दी हुई है। खानन सहेल को बिशप बना दिया, पादरी बनाया और आगे इसने हम सबको इकट्ठा किया। हालेलुया हालेलुया, प्रेज तो अगर मैं कहूँ कि नहीं कि मैं इनके पास और तुम इसको रहने दो, छोड़ो, आओ मेरे साथ, तुम्हें डरा दो, तो ये इख्तिलाफ है, ये अच्छा नहीं है। हमें इसके पीछे चलना होगा, फिर बरकत आएगी। तो मूसा जो था वो चुना हुआ वसीला है। भाई ने 5 मिनट दे दिए, तो इसलिए मैं इसको जो ना जल्दी बाइंड करूंगा ताकि ये ना हो बाद में के सलाम देने पे नींदर आ। वो 9:30 बजे तक 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट, चलो ठीक हो गया। तो कुछ तो दो ना भाई। हाँ जी ओके ठीक हो गया। तो ये जो चुना हुआ वसीला था, खुदा ने सुना। किसने सुना? खुदा ने सुना और उसका गुस्सा भड़का। तीनों को कहा चल 1 2 3 मारो खाना इजराने, और अबर में आ गया, वहां बातें करने लग गया। अबर में आया और उनको कहा तुम्हारे दरमियान कोई नबी है कि नबी तुम्हारे दरमियान? लाओ उसको, मैं उससे ख्वाब में और रोया में बातें करूंगा। ये मेरा बंदा मूसा, ये मेरे खानदान में ईमानदार है। हालेलुया। खुदा गवाही दे रहा है जी, खुदा वकालत कर रहा है, खुदा फेवर कर रहा है, खुदा हमायत कर रहा है उसकी, और उनको गुस्से से कह रहा है तुम्हारे दरमियान की नबी है तो लाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। ओके, सोना नहीं, जागते रहो और दुआ करो। तो उसने क्या किया? बोला तुमको जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें खौफ ना आया? मेरे मंसूब के खिलाफ, मेरे चुने हुए के खिलाफ तुम बोल रहे हो, बस वही ना। तो क्या हुआ? जैसे ही हारून ने नजर की, देखा मरियम तो सफेद कोड़ से सफेद हो गई है। चिल्लाया हाय मेरे मालिक, रहम कर दे, ये गुनाह हमारे दिल में न लगा, शिफायत कर दे। वो हलीम था, शिफायत कर दे ताकि ये हमारे खानदान में ये मोहल्ला न जाए। तो फिर उसने कहा कि हम माफ कर दिए इनको। तो उसने कहा क्या अगर इसके बाप ने इसके मुंह पे थूका हुआ होता तो क्या 7 दिन तक ये शर्मिंदा ना होती? इसको उठाओ और से बात देखो, 7 दिन आउट कर दो इसको। उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। बस क्या हुआ? उसको 7 दिन बाद किया और 7 दिन के बाद जब वो अंदर आई की वकालत करता है। हालेलुया। तो उसको अंदर लाए और आखिरी और उसके बाद जो पूछ करके हालेलुया। आखिरी बात बात करना चाहता हूँ, 5 मिनट अभी हैं भाई ने कहा, जिसका जिक्र कर रहे थे ये बिशप साहब, दाऊद का। दाऊद सुल्तान के दिल के मालिक था। हालेलुया। हाँ जी हालेलुया। सारे आ रहे हैं, आशर भी आया, भाई शहजाद भी, अकील भी, मैं भी, सारे आए बारी बारी। एलियाब आया पहले, बड़ा जवान चंगार सी मोटा था। तो खुदाबंदी हवा खुदा से बातें कर रहे, शिकायत कर। तो मूसा ने क्या, ये मूसा है, मूसा ने सोचा नहीं आशर होना है। खुदा ने कहा नहीं आशर नहीं है, आशर को नहीं मैंने चुना, वो मुझे पसंद नहीं आया। और उसको इसको तो जब वो छातों गुजर गया तो कहा कोई हो रही है, तेरा बेटा यीशु को बोला एक है, वो सबसे छोटा है। हालेलुया। वो आया तो कहता है ये है
इसको चुन, इसको मसा कर, महसूस कर कि अब ये इस्राएल का बादशाह हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने इसकी वकालत कर दी, वो उसके दिल के माफक था, उसका चुना हुआ वसीला था। तो खुदा अपने चुने हुए को जिसे वो प्यार करता है उसकी वकालत करेगा। ते दे 4 दिन की गल ने थोड़ी जी दुआ घोषणा की थी और चौथे दिन अभी खड़े रह गए, खुदा वकालत नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, आज सीखने की बात है। और आपको ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर वाकई जो मिशन रखते हो, आप इसको जो है खुदा के आगे झुको, उसके चरणों में अपना वक्त बिताना शुरू कर दो, और जो आप चाहते हैं आपकी राहें बार हो जाएंगी। हालेलुया। आपकी वकालत करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन इस कलाम के वसीला से बरकत। आमीन। भरपूर तालियां बजाएंगे, खड़े